Hi, welcome to MCQ Academy. This video and the subsequent videos of this particular slide cover the concept and unit of national income accounting from your board examinations point of view. This particular unit carries a weightage of 10 marks and you will be getting one question of 6 marks, one question of 3 marks and one question of 1 marks. Now this blueprint and this weightage is as per the CBSE blueprint which was released before this video was being shot. But for the latest blueprint and weightage for this chapter, you need to check out the description that is given below this video. So let's begin. First of all, we would start by understanding the concept of income. Income is a monetary receipt. Now the question that arises is, are all monetary receipts categorized into income? So the answer is no, because income is a monetary receipt against a value addition. यानी कि आपको वैल्यू एडिशन करने पे जो पैसा मिलेगा उसी को इनकम के अंदर कैटेगराइज किया जा सकता है. But now the bigger question that arises is that what is value addition? Because this is probably going to be the most important concept from this unit's point of view. Value addition can be defined as addition in utility of a good. किसी कमोडिटी के, किसी गुड की यूटिलिटी में अगर आप इंक्रीमेंट करवाते हैं तो दैट इज व्हाट वी कॉल वैल्यू एडिशन. Now this value addition can be in terms of number one, change in shape, size, color or format of that particular commodity, or number two, it can also be in terms of the increment in the utility or convenience of consuming that particular commodity. Let us understand this with an example. Let's say you plan to buy a Gucci jacket which was being manufactured in a country outside India. Now, manufacturer manufactured it and exported it to India. Now, while being exported, there is absolutely no change in the basic physical appearance of that particular jacket. But now, it has become more convenient for you to buy that particular commodity due to that being available at your nearby mall. And therefore, we would consider this as an addition to the utility of that particular commodity. Now, जब वैल्यू एडिशन का प्रोसेस कर रहे हो तो वो आप अकेले अपने दम पे नहीं कर पाओगे. You would need certain agents that would help you in making this value addition. सबसे पहला, you would need a land or a place where you can sell this particular jacket. Number two, you would need some capital that would be invested to establish the entire showroom that you have got. Number three, you would need certain people who would be working for your store, which would be categorized into laborers. And number four, you yourself need to be there because you are the entrepreneur and therefore your responsibility would be to bring all these factors of production together. When land is being used, you pay it rent. When capital is being used, you pay it interest. When labor is being used, you pay it wages. And when entrepreneur is there, you as an entrepreneur would be earning profit on it. These four monetary formats would be categorized into income. अभी हम लोग एक दूसरा फॉर्मेट देख रहे हैं इनकम का. पहला फॉर्मेट हमने क्या देखा इनकम का? इनकम को हमने डिफाइन किया, इट इज अ मॉनेटरी रिसीट अगेंस्ट वैल्यू एडिशन. ये वैल्यू एडिशन कौन कर रहा था? ये वैल्यू एडिशन कर रहे थे ये चार एजेंट्स. इन चार एजेंट्स को हमने क्या नाम दिया है? इन चार एजेंट्स को हमने नाम दिया है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन. और इन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को जो आपने पैसा दिया इस काम के लिए, दैट पर्टिकुलर मनी इज व्हाट वी कॉल इनकम. सो इनकम के दो कॉन्सेप्ट, पहला मॉनेटरी रिसीट अगेंस्ट वैल्यू एडिशन और दूसरा कॉन्सेप्ट क्या? इट इज फैक्टर पेमेंट और फैक्टर इनकम. लेट्स गो ऑन टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ नेशनल इनकम. अब ये नेशनल इनकम क्या है? क्योंकि यूनिट का नाम तो क्या है? नेशनल इनकम. तो व्हाट इज नेशनल इनकम? नेशनल इनकम इज द टोटल factor income generated within an economy. Now, the most important concept, what is economy?
नेशनल इनकम क्या है? नेशनल इनकम इज द टोटल फैक्टर इनकम, यानी कि सभी लोगों ने कुल मिला के एक इकोनॉमी के अंदर कितनी फैक्टर इनकम जनरेट करी, उसको हम लोगों ने डिफाइन किया एज नेशनल इनकम. इकोनॉमी कैन बी having two aspects or it can be defined on the basis of two characteristics. पहला, economy can be defined in terms of the location, यानी कि कौन कौन सा दायरा आपकी इकोनॉमी का हिस्सा बनता है, कौन कौन सी बाउंड्रीज हैं, कौन कौन सी जगह हैं जो आपकी इकोनॉमी के अंदर काउंट की जाएंगी. Secondly, economy can be defined in terms of the people who are earning income in that particular economy. तो जब आप एक इकोनॉमी को उसकी लोकेशन की टर्म्स के अंदर डिफाइन करते हैं तो द टेक्निकल टर्म दैट वी यूज हियर इज द डोमेस्टिक टेरिटरी of the economy. And when we define an economy in terms of the people or residents of that particular economy, we use this term that we call normal residents of the economy. When you define income in terms of the domestic territory, we call it the domestic product generated within the economy. And when we define total national income in terms of the normal residents की उस कंट्री के उस इकोनॉमी के लोगों ने कुल मिला के कितनी इनकम जनरेट करी है, उसको आप टर्म दोगे नेशनल प्रोडक्ट. These two concepts, the concepts of domestic territory and normal residence, and this concept of domestic product and national product, would be studied very much in detail in the later part of this chapter. बट फॉर नाउ ये बेसिक आपके पास में पता होने चाहिए कि डोमेस्टिक टेरिटरी यानी कि मेरी इकोनॉमी की बाउंड्रीज के अंदर कितनी इनकम कमाई गई है. याद रखिएगा, नेशन की बाउंड्रीज नहीं बोल रहे हो आप, यहाँ पे आप इकोनॉमी की बाउंड्री बोल रहे हो. और दूसरा कि आपके लोगों ने, आपके नॉर्मल रेजिडेंट्स ने इकोनॉमी में कितना पैसा कमा के दिया है. ये दोनों ही आपके पास में कैटेगराइज किए जा सकते हैं किसमें? नेशनल. ये दोनों ही दो डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं किसके? नेशनल इनकम के. दोनों के बीच में डिफरेंस, दोनों के डिटेल्स हम लोग लेटर पार्ट में इस चैप्टर के अंदर कवर करेंगे. जब हम लोगों ने बात करी इनकम की तो हमें बात करनी पड़ेगी ट्रांसफर पेमेंट्स की. Now, what are transfer payments? Transfer payments are also monetary receipts. There are certain monetary receipts against which no value addition is being done. Such monetary receipts against which no value addition is being done is what we call transfer payments. Transfer payment आपको मिलने वाला ऐसा पैसा जिसके अगेंस्ट में आपने कोई भी काम नहीं किया है. तो अगर मैं एक सिंपल लेमेंस लैंग्वेज के अंदर कहूं तो इनकम इज द मॉनेटरी रिसीट अगेंस्ट खून पसीना और खैरात में मिला हुआ पैसा, यानी कि बिना किसी इनपुट के, बिना किसी मेहनत के आपको जो पैसा मिला, दैट वुड बी कैटेगराइज्ड इनटू ट्रांसफर पेमेंट्स. याद रखिएगा, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, दैट ट्रांसफर इनकम्स, ट्रांसफर पेमेंट्स नेवर फॉर्म अ पार्ट ऑफ नेशनल इनकम. कभी भी नेशनल इनकम में ट्रांसफर पेमेंट्स को इंक्लूड नहीं किया जाएगा, चाहे आप किसी भी लेवल पे इसको पढ़ लीजिए. वाई दे आर नॉट बीइंग इंक्लूडेड? बिकॉज दे आर नॉट ब्रिंगिंग इन एनी वैल्यू एडिशन. उन्होंने किसी भी प्रकार का वैल्यू एडिशन नहीं किया है. एग्जाम्पल इज द पॉकेट मनी दैट यू अर्न. दीज आर द डोनेशंस दैट यू मेक. डोनेशंस कहाँ पे? आपने पीएम रिलीफ फंड के अंदर पैसा दिया, आपने मंदिर में पैसा चढ़ाया, आपने मोहल्ले के किसी फंक्शन के लिए चंदा दे दिया. दीज आर ऑल डोनेशंस, सो दीज आर ट्रांसफर पेमेंट्स. नंबर 3, द चैरिटीज दैट यू मेक. किसी भी प्रकार की जो आपने चैरिटी करी है वो सारी की सारी ट्रांसफर पेमेंट्स के अंदर शामिल हो जाएगी. नंबर 4, वेरी 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 इंपॉर्टेंट एंड आई वॉन्ट यू टू रिमेंबर दिस. क्या? नंबर 1, टैक्सेस एंड दूसरा subsidies. Taxes and subsidies, these are very important categories of, these are very important types of ट्रांसफर पेमेंट्स. इन्हें हम लोग डिटेल में आगे पढ़ने वाले हैं, बट अभी के लिए आपको याद रखना है these two are to be categorized into transfer payments. Now let's understand the concept of sectors of economy and let's understand the classification of economy into different sectors. Now, before we go ahead to understand this concept, there is one mental block that you need to break down here.
that economy is having three sectors: primary, secondary, and tertiary, because that is a classification that we make on the basis of the kind of production that a particular producer is making. But the classification that we are understanding now is based on the economic activity that a particular sector carries out in an economy. तो कहाँ से पैसा आया और कहाँ पे पैसा दिया, किस चीज़ से पैसा कमाया, किस चीज़ में पैसा खर्च किया, उसके बेसिस के ऊपर वी कैन डिफाइन और क्लासिफाई द इकोनॉमी इन 4 सेक्टर्स. कौन कौन से सेक्टर्स हैं ये? नंबर 1 द हाउसहोल्ड, नंबर 2 द प्रोड्यूसर, नंबर 3 द गवर्नमेंट, एंड नंबर 4 rest of the world. Household sector, these are individuals which are residing in an economy, and while they are residing, वो अपनी खुद की इच्छाओं को और अपने साथ के लोगों के, परिवार के लोगों की इच्छाओं को पूर्ति के लिए they are making certain expenses on the goods which are being consumed. Second sector happens to be the producer sector. Producer sector is the sector which undertakes production processes in an economy. They are there to sell or manufacture or produce goods in an economy. The third sector happens to be the government, which is generally there to control the economy, to regulate the economy, and to ensure general welfare of the people who are there in the economy. Number 4 refers to rest of the world, which refers to the entire world which is there outside your domestic territory. याद रखिएगा domestic territory का concept जो हमने पढ़ा था, we would understand that in detail, very much in detail. but अभी क्या याद रखना है आपको? आपकी इकोनॉमी से बाहर का जितना भी इलाका है, आपकी कंट्री से बाहर का जितना भी इलाका है, that would be classified into rest of the world. Let's now understand what are the sources and what are the destinations wherein they would be spending this money. Number 1, talking about household, they are receiving this money from the factors of production that they are selling in the market. याद रखिएगा, household sector is the owner of factors of production. तो ये क्योंकि ओनर है फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के, तो ये मार्केट में इन फैक्टर्स को बेचेंगे. यही वो लोग हैं जो कमर्शियल पर्पस के लिए अपनी लैंड को यू देंगे, जिसके अगेंस्ट में रेंट कमाएंगे. यही वो लोग हैं जो आपको कैपिटल उधार पे देंगे, पैसा उधार पे देंगे, एंड विल अर्न इंटरेस्ट आउट ऑफ इट. यही वो लोग हैं which would be coming to your place to work and would be earning wages against it. and यही वो लोग हैं जहां से entrepreneurs मार्केट में आएंगे and would be earning profit. The money that they would be earning, they would be spending on consumer goods produced for satisfaction of individual wants. यानी कि आपकी इकोनॉमी में जो भी कंजम्पशन के लिए गुड्स खरीद के लेके गया, कौन कौन से? बहुत सिंपल से, बहुत बड़ी कैटेगरी है. कार्स, एयर कंडीशनर्स, रेफ्रिजरेटर्स. घर खरीदा, फर्नीचर खरीदा, कबर्ड खरीदी, खाना खरीदा, होटल्स में स्टे किया, हॉलीडेज के ऊपर गए. जो भी पैसा आपके पास में इंडिविजुअल वांट्स के सेटिस्फैक्शन के लिए खर्च किया गया, वो सारा का सारा पैसा यही लोग खर्च कर रहे थे. यही सेक्टर आपकी इकोनॉमी के अंदर खर्च कर रहा था. पैसा आएगा कहाँ से? दे आर दी ओनर्स ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन. और पैसा खर्च कहाँ पे करेंगे? दे वुड बी स्पेंडिंग दिस मनी ऑन द सेटिस्फैक्शन ऑफ इंडिविजुअल वांट्स. इंडिविजुअल किसकी? खुद की और अपने परिवार के लोगों की. द सेकेंड सेक्टर इज द प्रोड्यूसर सेक्टर. प्रोड्यूसर सेक्टर के पास में पैसा कहाँ से आएगा? They would receive money from the sale of goods produced. था जो प्रोडक्शन उन्होंने किया था, वो बेच के जो भी पैसा आएगा, ये इनका सोर्स ऑफ इनकम बनेगा. सभी प्रोड्यूसर्स इसमें शामिल हैं. मैन्युफैक्चरर शामिल हैं, दुकानदार शामिल हैं, सर्विस प्रोवाइडर शामिल हैं. बट वो सभी लोग जो बिजनेसेस में लग के पैसा कमा के लेके आ रहे हैं, दे वुड ऑल बी कंसिडर्ड एज प्रोड्यूसर्स. वेयर वुड दे बी स्पेंडिंग मनी? ये अपने पैसे को 3 जगह पे खर्च करेंगे. सबसे पहला, इंटरमीडिएट कंजम्पशन. इंटरमीडिएट कंजम्पशन मीन्स while undertaking production they need to buy certain raw material, और उस raw material के ऊपर जो पैसा खर्च करेंगे, that would be known as intermediate consumption. Again, we would be studying this concept very much in detail in the later part of this chapter. Second thing on which they would be spending their money is factor payment.
इन्होंने अपने बिजनेस को कैरी आउट करने के लिए, प्रोडक्शन को कैरी आउट करने के लिए, वैल्यू एडिशन को कैरी आउट करने के लिए, दे हैव इन्वॉल्व्ड वेरियस फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन to whom they need to pay money. The money that they are paying to the factors of production forms the second category, second head of where they would be spending this money. तीसरी चीज, they would be forming capital. Capital is the expenditure that you make in order to generate income in future. लंबे समय के लिए आपको इनकम कमा के देने वाला जो खर्चा होगा, दैट इज व्हाट वी कॉल कैपिटल एक्सपेंडिचर. नाउ, तो ये तीन हेड्स हैं जिसके ऊपर ये लोग पैसा खर्च करेंगे. लेट्स अंडरस्टैंड दिस विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल. Let's say you are a dealer of a particular car company and you are there into this business of selling cars. Now, what is your intermediate consumption? Your intermediate consumption happens to be the cars that you are buying from the manufacturer for the purpose of selling them in the market. Your factor payment would involve the rent for the showroom you have taken on lease. It would involve the wages that you are paying, the salaries that you are paying to the various people who are employed there in your showroom. The third category would be the interest that you are paying to the bank from where you have taken a loan to establish this entire dealership of yours. So that would constitute the interest that you are paying. And whatever you are left with would constitute the profit. Factors of production के ऊपर ये लोग जो पैसा खर्च करेंगे, that would form a part of factor payments. तीसरा, कैपिटल फॉर्मेशन के ऊपर क्या पैसा खर्च किया? जो भी आपके पास में फर्नीचर वहां पे लगाया, शोरूम के इंटीरियर्स करवाए, एक इन्होंने अपने पास में यार्ड तैयार किया जहां पे गाड़ियां जो थी वो पार्क की जा रही थी, ये सारी की सारी चीजें इनके कैपिटल फॉर्मेशन के अंदर आएंगी. द थर्ड सेक्टर दैट कम्स इनटू प्ले इज द गवर्नमेंट. गवर्नमेंट के पास में पैसा कहां से आ रहा है? देयर आर वेरियस सोर्सेस, बहुत सारे सोर्सेस है. क्या क्या सोर्सेस है? इनकम ऑफ पब्लिक सेक्टर यूनिट्स. आपने गवर्नमेंट की किसी भी प्रकार की सर्विसेज का यूज किया, उसके लिए जो आपने फी पे करी है वो सारी गवर्नमेंट की इनकम बन जाएगी. आपने कोई भी गैर कानूनी काम किया है, यू गॉट इन्वॉल्व इन सर्टेन इलीगल एक्टिविटीज और यू ब्रोक सर्टेन रूल्स, सो द फाइन दैट यू पे अगेंस्ट दैट वुड बी अ पार्ट ऑफ गवर्नमेंट्स इनकम. हम इसके अंदर टैक्सेस को भी अभी लिखे हुए हैं, बट याद रखिएगा दीज आर ट्रांसफर रिसीट्स ऑफ द गवर्नमेंट, बट दे आर नॉट अ पार्ट ऑफ इनकम. तो हम लोग यहाँ पे रिसीट्स के सोर्सेज देख रहे हैं, इनकम के सोर्सेज नहीं देख रहे हैं, हम लोग रिसीट्स के सोर्सेज देख रहे हैं. नाउ द क्वेश्चन इज कि बाकी के जो सेक्टर्स थे क्या उनके पास में ट्रांसफर इनकम्स नहीं आ रही? बिल्कुल आ रही है, बट बिकॉज as far as government sector is concerned, because transfer payments form a substantial part of their monetary receipts, therefore it is necessary to understand taxes. बाकी सभी सेक्टर्स के लिए ट्रांसफर रिसीट्स बहुत बड़ा सब्सटैंशियल पोर्शन उनकी मॉनेटरी रिसीट्स का जनरली नहीं होते हैं, और इसलिए हम उनको दूसरे सेक्टर्स के लिए कंसिडरेशन में नहीं ले रहे हैं. What are the places where the government is spending? वेरियस हेड्स. आपको इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट करवाना है, आपको पब्लिक सेक्टर यूनिट्स के लोगों की तनख्वाहें पे करनी है, आपको गवर्नमेंट के जो डिपार्टमेंट्स हैं उनके लिए आपको पैसा पे करना है. देर आर सर्टेन कंपनीज विच आर देयर इन टू लॉसेज एंड द गवर्नमेंट गेट्स इन टू बेल देम आउट. फॉर एग्जाम्पल, इन केस ऑफ एयर इंडिया, द गवर्नमेंट इज ट्राइंग टू बेल आउट दैट कंपनी बिकॉज ऑफ द ह्यूज लॉसेज दैट दैट कंपनी इज इनकरिंग. तो उन कंडीशंस के अंदर सरकार को पैसा खर्च करना पड़ रहा है. एंड सिमिलरली टैक्सेस के अगेंस्ट में यहाँ पे जो खर्चा किया जा रहा है, सब्सिडीज पे भी आपको पैसा खर्च करना पड़ता है एज गवर्नमेंट. व्हाट आर सब्सिडीज? दीज आर ट्रांसफर पेमेंट्स मेड बाय गवर्नमेंट टू द पीपल. तो सब्सिडीज भी एक तरह के ट्रांसफर पेमेंट्स हैं. अगेन, ट्रांसफर पेमेंट्स बाकी सारे सेक्टर्स भी कर रहे हैं, बट subsidies form a substantial part of government's expenses and therefore we are considering them here. But remember, they are not going to be considered as a part of national income. I will keep on repeating this. The last sector that comes into play is rest of the world. कर क्या रहे हैं हम लोग? ध्यान से सुनिएगा. What we are doing is we are taking into consideration the sources from where you will be earning money and where you will be spending money.
सो एज रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, यानी कि हिंदुस्तान के बाहर का इलाका जितना भी है, they would be earning money from the imports made by us as a country. तो हमने क्या लिखा है यहाँ पे, imports made by domestic country यानी कि जिस कंट्री के बारे में अभी बात कर रहा हूँ. सो लेट्स से फॉर इन आर केस द डोमेस्टिक कंट्री हैपन्स टू बी इंडिया. तो हम कह रहे हैं इंडिया ने जितने भी इम्पोर्ट्स किए हैं उस इम्पोर्ट्स के अगेंस्ट के अंदर जो भी पैसा इंडिया पे करेगा, that would form a part of the income or monetary receipts of rest of the world, of abroad. बाहर की जितने भी हमारे पास में इलाका है उन लोगों की इनकम का एक स्रोत, एक सोर्स कौन है, हमारे जो इंपोर्ट्स हैं. फॉर एग्जाम्पल वी आर इंपोर्टिंग क्रूड ऑयल, तो क्रूड ऑयल उनके लिए एक इनकम का सोर्स है. हमारा इंपोर्ट है, हमारा खर्चा हो रहा है. तो क्रूड ऑयल हम लोगों ने इंपोर्ट किया लेट्स से ईरान से. ईरान बिकम्स अ पार्ट ऑफ रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड एंड इंडिया जो कि इंपोर्टर है वो हमारे पास में डोमेस्टिक कंट्री बन रहे हैं, यानी कि हम अपने लिए इंपोर्ट कर रहे हैं. तो हमारे लिए तो ये हो गया खर्चा, लेकिन जो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड था लेट्स से ईरान यहाँ पे, उनके लिए ये हो गई इनकम. Similarly, when we are exporting, तो एक्सपोर्ट्स हमारे लिए इनकम बनेंगे और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के लिए वो खर्चा बनेंगे. वी अर्न दिस इनकम फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड एंड फॉर रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड दैट बिकेम an expense. So these are the four sectors of the economy. Now let's understand the concept of real flow and money flow, which come in as a part of circular flow of income in an economy. Now what is circular flow? बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट. हमने देखा पिछली स्लाइड में कि these different sectors of the economy are dependent on each other, and therefore there are several categories of goods and money that are continuously flowing between these four sectors. As far as CBSE syllabus is concerned, we need to take into consideration the circular flow for two sector economy only. केवल टू सेक्टर इकोनॉमी को ही हम लोग कंसिडर करेंगे यहाँ, जहाँ पे केवल दो सेक्टर्स, कौन कौन से सेक्टर्स एग्जिस्ट कर रहे हैं. नंबर 1 इज द हाउस होल्ड एंड नंबर 2 इज द प्रोड्यूसर. ये रियल फ्लो और ये मनी फ्लो क्या है? रियल फ्लो और मनी फ्लो समझिएगा, दीज आर नथिंग बट द नेम्स और लेट्स से कैटेगरीज of exchange of goods which are taking place between the two sectors. यानी कि जो एक goods या सर्विसेज आपस में एक्सचेंज कर रहे हैं उन्हें हमने कुछ टेक्निकल नेम्स दिए. वो टेक्निकल नेम्स जो होंगे जब हम गुड्स एंड सर्विसेज की बात कर रहे हैं तो दैट इज नोन एज रियल फ्लो. एंड जब वो गुड्स एंड सर्विसेज फ्लो करते हैं तो उनके अगेंस्ट में देयर आर सर्टेन monetary payments and monetary receipts which flow between these two sectors, which two are given certain technical nomenclature. तो उनके जो नाम है, उनकी जो कैटेगरीज हैं वो हमें यहाँ पे समझनी है. तो पहले हम लोग बात कर रहे हैं किसकी? पहले हम लोग बात कर रहे हैं रियल फ्लो की. तो रियल फ्लो बिटवीन हाउस होल्ड एंड प्रोड्यूसर सेक्टर. सबसे पहले देखिए कि हाउस होल्ड सेक्टर जो है वो प्रोड्यूसर सेक्टर को किस तरह के गुड्स एंड सर्विसेज दे रहा है. तो हमने ये पहले ही पढ़ लिया है. क्या हाउस होल्ड से प्रोड्यूसर सेक्टर की तरफ क्या फ्लो कर रहा है? इट इज द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन विच आर फ्लोइंग फ्रॉम हाउस होल्ड टू द प्रोड्यूसर सेक्टर. इसी तरह से प्रोड्यूसर सेक्टर से हाउस होल्ड की तरफ क्या फ्लो कर रहा है? इनको मिल रहे हैं कंजम्पशन गुड्स फॉर सैटिस्फैक्शन ऑफ वॉन्ट्स. कौन सी वॉन्ट्स? इंडिविजुअल वॉन्ट्स के सेटिस्फैक्शन के लिए. सिमिलरली इनको हम लोग फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज भी कह सकते हैं, कंजम्पशन गुड्स, या इनको हम लोग और क्या बोल सकते हैं? फाइनल गुड्स. फाइनल गुड्स हम लोग इसके बाद में जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं वो हम लोग कैटेगराइजेशन ऑफ गुड्स ही पढ़ने वाले हैं. तो फाइनल गुड्स को हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे. नेक्स्ट कम्स इन दी मॉनेटरी फ्लो, मनी फ्लो. अब मनी फ्लो क्या है? अगेन जो पैसा आप दो सेक्टर्स के बीच के अंदर फ्लो करवा रहे हो, हाउस होल्ड और प्रोड्यूसर, वी नीड टू गिव अ टेक्निकल नॉमेनक्लेचर टू दैट पर्टिकुलर फ्लो ऑफ मनी. तो क्या है? ध्यान से सुनिएगा. फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जब हाउस होल्ड ने प्रोड्यूसर सेक्टर को दिए तो व्हाट दे गेट अगेंस्ट दिस
हाउस होल्ड सेक्टर को फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के अगेंस्ट में जो पैसा मिला उस पैसे को आप क्या बोलेंगे, इसको आप बोलेंगे फैक्टर इनकम, इसको आप बोलेंगे फैक्टर इनकम। इफ यू आर देयर एज अ पार्ट ऑफ हाउस होल्ड रिसीविंग एंड पे, तो वी वुड कॉल इट फैक्टर इनकम। इफ you are there on the payment side as a producer, you would call it factor payment। तो इसको factor income या factor payment दोनों ही कहा जा सकता है। सिमिलरली जब हाउस होल्ड प्रोड्यूसर को पैसा पे करता है, किसके लिए, कंजम्पशन गुड्स के लिए, तो उसको हम लोग बोलते हैं, ध्यान से सुनिएगा इस टर्म को, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, final consumption expenditure. This itself is a very important concept. You may get a 1 mark question out of this as well, wherein you are being asked to define private final consumption expenditure. This is otherwise also very important conceptually. Private final consumption expenditure refers to the consumption expenditure or the expenditure on consumption of final goods and services made by the household sector। ये household sector mention करना मत भूलिएगा। तो household sector ने अपने consumption of goods and services के ऊपर जो पैसा खर्च किया है, that money is known as private final consumption expenditure। That's all from this particular chapter. The next video carries on this particular chapter further. Thank you.